Dear students, let us learn the company issue of shares in your syllabus. Issue of shares. First of all, I would like to tell you that what is a company? A company is a large, very large economic organization which produces goods and services or buy and sell goods and services with profit motive by fulfilling the demand needs of those people all over the world. They are earning profit. That is company. So when this joint stock company concept came in, I would like to tell something about that. From the very primitive ages, the society used to deal with one another in terms of goods and services through barter system. So it means ऐसा कोई समय नहीं था कि दुनिया में कोई बिजनेस नहीं होता था. बिजनेस होते थे, बट सोल प्रोप्राइटरशिप, partnership, cooperative society, these type of business organization used to exist in this world. But when in sorry, when industrial revolution took place in Europe, heavy machines were invented and installed at a single place. Huge quantity of goods and services were produced. Goods needed by lakhs of people were produced in a single factory. So, to run that factory, large amount of capital is needed, because जब लाखों लोगों का गुड्स एक ही जगह प्रोडक्शन होगा तो उसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगेंगे, और लाखों करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट करना कुछ लोगों के द्वारा, एक दो लोगों के द्वारा संभव नहीं था. तो बाय फीलिंग द नीड ऑफ द टाइम, नीड ऑफ द आवर, एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी. इसमें नियम बनाया गया कि द ओनर्स विल बी कॉल्ड शेयर होल्डर. द ओनर्स विल बी कॉल्ड शेयर होल्डर. और company's capital will be known as share capital, and many individuals can hold that share of that company, and the person holding the share will be called shareholder, and they are the real owner of that business. But since there will be lakhs of owners, lakhs of shareholder, everyone cannot, as an owner, cannot interfere into the day-to-day affair of the business, because if lakhs of owner will interfere in day-to-day activity of the business will not run smoothly. So what they did, some rules were made, memorandum of association, articles of associations were drafted, that how a business will be run. It was drafted that a committee of few shareholders called board of directors, in the leadership of chairman, will run the business on behalf of all the shareholders, and the chairman will be the largest shareholder of that company. So a team of board of directors and chairman will run that company. They will look after the day-to-day business affairs of that company, and every year annual general meeting will be held, in which all the shareholders will take part, and each shareholder, irrespective of their shareholding, मतलब कि जितने भी शेयर होल्डर होंगे जब एनुअल जनरल मीटिंग में शामिल होंगे,
तो वो कितने शेयर होल्ड के मालिक हैं, वो 4 लाख शेयर के अकेले मालिक है कि 4 करोड़ शेयर के अकेले मालिक है कि 1 शेयर के अकेले मालिक है कि हाफ शेयर के अकेले मालिक हैं, ईच एंड एवरी शेयर होल्डर विल हैव 1 वोट। वाई वोटिंग सिस्टम वॉज अलाउड, क्यों बनाया गया? क्योंकि किसी भी मीटिंग में क्या होगा, किसी भी विषय को लेकर के मुद्दा रखा जाएगा सामने में, उस पर वोटिंग करनी होगी कि हाँ ये बात कंपनी में चले कि ना चले, इस पर काम हो कि नहीं हो। तो उसमें यस और नो दोनों आएंगे। तो वो यस और नो के लिए अगर आप 5 लाख शेयर के मालिक है तो भी आपको 1 वोट, अगर आप 5 शेयर्स के मालिक है तब भी 1 वोट, अगर आप 5 करोड़ शेयर्स के मालिक है तो भी 1 वोट, और अगर आप हाफ शेयर्स के मालिक है तब भी 1 वोट। सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम was started, and due to this a smooth way of running the new type of business organization called joint stock company initially started. Later on many improvements, many amendments were made in the law. In India, the first law after independence was the Companies Act of 1956, which has so many amendments, but finally a big amendment, a huge amendment was made in the Companies Act 2013. 2013 में जो लेटेस्ट कंपनीज एक्ट है उसमें बहुत सारे बदलाव करके एक नया कंपनी का कानून हमारे सामने है और उसी के हिसाब से हम लोग को करना है। तो कंपनी क्या है समझ में आ गया एक तरह से कि लाखों करोड़ों लोगों की मालिकत्व में चलने वाला एक बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाखों करोड़ों लोग शेयर होल्डर लोग जो मालिक है बिजनेस के, वो डे टू डे बिजनेस में इंटरफेयर करेंगे। उनके लिए साल में एक ही समय है। हाँ, और एक बात, इस कंपनी में शेयर होल्डर एम्प्लॉय भी बन सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। उनका शेयर होल्डिंग अलग हो गया, वो एम्प्लॉय भी बन सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट अपना अलग से दूसरा कुछ बिजनेस कर सकते हैं, वो नौकरी कर सकते हैं अलग से कहीं दूसरी जगह। तो शेयर होल्डिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि उसी बिज़नेस में रहे, वही बिज़नेस करे और कुछ नहीं कर सकते हैं, या उस बिज़नेस में जॉब नहीं कर सकते हैं। उसमें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन सकते हैं, चेयर भी बन सकते हैं, चेयरमैन भी बन सकते हैं, और नहीं तो कुछ अलग से अपना बिज़नेस कैरी ऑन कर सकते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है, लेट अस कम टू द पॉइंट, हमारे सिलेबस में हमको सीखना है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी लोगों में जब शेयर इशू करती है, शेयर इशू करने का मतलब हो गया कि जैसे आप कॉलेज में देखते होंगे कि हम लोग कॉलेज अगर लोगों के एडमिशन, स्टूडेंट्स को एडमिशन लेती है तो फॉर्म इशू करती है। फॉर्म इशू करने का मतलब कि आप अप्लाई करो, यू वांट टू टेक एडमिशन इन कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जितने सारे लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे वो सभी लोग को एडमिशन मिल ही जाएगा। द अल्टीमेट राइट इज़ विद द कॉलेज अथॉरिटी कि किसको एडमिशन ले ना ले। उसी तरह से कंपनी क्या करती है, अपने बिज़नेस को चलाने के लिए ये जो इतने सारे मालिक बनाए गए, मकसद बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? क्योंकि उन लोगों से जो थोड़ा करके पैसा आएगा तो कंपनी के पास करोड़ों अरबों रुपया हो जाएगा, उससे बिज़नेस स्मूथली चलेगा। तो अभी हमको सीखना है कि कैसे कंपनी लोगों में शेयर इशू करती है, मतलब लोगों को ऑफ़र करती है कि आप शेयर खरीदो, और हम और आप कोई पोस्टमैन का काम कर रहे, कोई टीचर हैं, कोई बार्बर हैं, कोई कॉबलर हैं, कोई पॉटर हैं, कोई मैकेनिक हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, जो भी हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, या कोई बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो अपने अपने फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़, इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से कोई 2 शेयर, कोई 200 शेयर, कोई 2000 शेयर, कोई 2 लाख शेयर्स का अकेले परचेज़ करेगा। उसके लिए एप्लीकेशन डालेगा, एप्लीकेशन के लिए जो पैसा रिक्वायरमेंट होगा वो भेजा जाएगा, और फिर कंपनी जब एप्लीकेशन का एक लास्ट डेट होता है उस समय कंपनी मीटिंग बुलाती है कि हाँ आज कितना एप्लीकेशन लोगों ने किया, कितना पैसा कंपनी के अकाउंट में आया। तो कंपनी के अकाउंट में जो पैसा आता है वो देखा जाता है कि हम लोगों ने जितना शेयर इशू किया उसी के हिसाब से आया कि उससे कम आया। तो वो अगर कम आया है या ज़्यादा, या उस पर मीटिंग करके फाइनलाइज़ किया जाता है कि क्या करना नहीं करना। उसको हम लोग बाद में पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे, अभी आपको उस पर नहीं जाना है। फिर एक एक करके कंपनी लोगों से बाकी पैसा मांगती है। अब आप बोलोगे बाकी पैसा क्या, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के एक शेयर का दाम 10 रुपये है, तो कंपनी उस एक शेयर का दाम 10 रुपये आपसे एक ही बार में नहीं लेती है। ज़्यादातर केसेस में आपको फ्रीडम देती है कि आप उसको 3-4 इंस्टॉलमेंट में जमा करें। यूजुअली वो इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ये 4 इंस्टॉलमेंट यूजुअली है, बट खाली एप्लीकेशन में भी सारा पैसा ले सकते हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 ही इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा ले सकते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल 3 इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, बट यूजुअली 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं।
पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम फर्स्ट कॉल, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का नाम फाइनल कॉल। और हर एक इंस्टॉलमेंट का पहले से टाइम मेंशन होता है कि ये उसका लास्ट डेट है, इस डेट तक आपका पैसा कंपनी के अकाउंट में आ जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू से सीखते हैं इसको। एग्जाम्पल 1 इशू ऑफ शेयर से। भारत लिमिटेड ऑफर्ड मतलब इशूड हो गया, इशूड 1 लाख शेयर्स। अच्छा, शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे इक्विटी शेयर लेते हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब कंपनी ने लोगों में 1 लाख शेयर इशू किया, 10 रुपया करके उसका टोटल दाम है। बट पेबल कैसे करना है? पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन पे आपको देना है ₹3। ऑन अलॉटमेंट ₹4। ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 and on final call ₹1। और इस सब का एक डेट होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी जो शेयर इशू की है वो सपोज करो 1 अप्रैल को इशू किया, तो हो सकता है कि एप्लीकेशन का डेट लास्ट डेट हो 30 जून, अलॉटमेंट का लास्ट डेट हो 30 सितंबर, फर्स्ट कॉल का लास्ट डेट हो 31 दिसंबर एंड फाइनल कॉल का लास्ट डेट हो 31 मार्च। ये जरूरी नहीं कि हो 1 महीने 2 महीने का गैप से भी हो सकता है। तो जो भी डेट रहेगा वो एक्चुअली में लिखा रहता है। अच्छा, तो इन्होंने इशू कर दिया। अब उसके बाद देश भर से क्या रिस्पांस मिला, तो देखिए क्या लिखा है। एप्लीकेशंस वेयर, एप्लीकेशंस नहीं होगा, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड, RECEI, received on exactly 1 लाख शेयर्स। हाँ, मतलब इशू किए थे 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन भी 1 लाख शेयर्स का आ गया। द बोर्ड, BOARD, the board of directors allotted all the applicants मतलब हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सभी से एप्लीकेंट्स के आवेदन को स्वीकार कर लिया और उनके नाम से शेयर अलॉट कर दिया, मतलब उनको मालिक बना दिया। एंड thereafter all the remaining installments were called up and received as and when their due date
अराइव्ड, मतलब जैसे जैसे इसका ड्यू डेट आया उसका पैसा एक एक करके मिलता गया। गिव जर्नल, तो इसकी जर्नल कंपनी के अकाउंटेंट क्या करेंगे, हमको ये सीखना है। हम कंपनी के अकाउंटेंट हैं और कंपनी के अकाउंटेंट, कंपनी ने जो लोगों में ये शेयर इशू किया, कैसे कैसे उसका एप्लीकेशन का पैसा आया होगा, अलॉटमेंट का पैसा आया होगा, फर्स्ट कॉल का पैसा आया होगा, फाइनल कॉल का पैसा आया होगा, उसकी एंट्री हमको करने सीखनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्यूशन। मैंने पहले आपको रूल नहीं समझाया, सॉल्यूशन के माध्यम से रूल समझाएंगे, आई थिंक ज़्यादा कारगर होगा। देखते हैं। तो देखिए, कंपनी ने पहले तो लोगों में 1 लाख शेयर इशू किया कि भाई आप लोग 1 लाख शेयर है, हालांकि इसका एक शेयर का दाम 10 रुपया है, लेकिन आपको वो 10 रुपया भी तोड़ तोड़ के देना है। 3 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया एप्लीकेशन में, 4 रुपया अलॉटमेंट में, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में और 1 रुपया कॉल फाइनल कॉल में देना है। अब बोलोगे ऐसा क्यों कर दिया, 10 को तोड़ तोड़ के 4 3 3 4 2 1 क्यों कर दिया? क्योंकि देखिए, मान लीजिए मैं अकेले अगर 10,000 शेयर अप्लाई कर दिया, मैं एज अ शेयर होल्डर, जनता की तरफ से सोचिए कि अगर मैंने 10,000 शेयर के लिए अकेले अप्लाई कर दिया तो 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपये देने में हो सकता है मेरे को एक बार में दिक्कत हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर को दाम तोड़ तोड़ के दिया जाता है कि भाई जो बड़े शेयर होल्डर हो, जो ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई करे, वो तोड़ तोड़ के धीरे धीरे, और इसका ये भी मकसद है कि कम कमाने वाले लोग भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। जैसे मान लीजिए अगर मैं 100 शेयर ही अप्लाई करता तो 100 इंटू 10 1,000 रुपये मेरे को देना है, लेकिन उस 1,000 को भी देने को के लिए मेरे को 4 इंस्टॉलमेंट दिए गए, तो तोड़ तोड़ के देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहला हम कंपनी के अकाउंटेंट हैं, हमारे पास पैसा एप्लीकेशन का आया, ठीक है, 1 लाख शेयर का, तो हमको रिसीविंग करने की पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो सुनिए, एप्लीकेशन पे दाम कितना है, 1 लाख शेयर का 3 रुपया करके, तो 3 लाख रुपया मिलेगा हमको। कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा आया, 3 लाख रुपीज़ आए। ओके, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये क्रेडिट कर देंगे। ये कितना आ गया, तो 1 लाख 3 लाख रुपीज़ आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसका नरेशन होता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹3 ईच। मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पर। फिर सुनिए, जैसी एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, अच्छा मैंने यहाँ अकाउंट का गलती मिस्टेक कर दिया, आप लोग तो टीचर की गलती पकड़ने में एक्सपर्ट हो, चलो भाई ठीक करता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर को स्पेलिंग भी नहीं आता है। अच्छा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो गया, पहला एंट्री कर लिए। अब हम कंपनी के अकाउंटेंट हैं, इसके बाद कंपनी का नियम होता है कि जब एप्लीकेशन की पैसा रिसीव कर लो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग में डिसीजन लेते हैं कि देखो भाई, क्या हम लोगों ने जितना शेयर इशू किया था क्या उतना ही के लिए एप्लीकेशन आया है, और मोर देन दैट। फिर कंपनी मीटिंग करती है, मीटिंग करके उसमें ये डिसीजन लेती है कि अगर ज़्यादा का आया है तो उसको रिफ़ंड कर दो या प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो। उसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे कि रिफ़ंड होगा तो क्या जनरेट करेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट होगा तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, वो अभी इस क्वेश्चन में नहीं है। और अगर एग्जैक्टली जितना इशू किया उतना ही अगर एप्लीकेशन आया है तो फिर सबको जो जितने शेयर के लिए अप्लाई किया उसके उतने शेयर का मालिक बना दो। इसीलिए यहाँ एक लाइन देखिए ऊपर में लिखा था, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलॉटेड ऑल द एप्लीकेंट्स एंड देयर आफ्टर ऑल द रिमेनिंग, ये देखिए यहाँ भी मेरा मिस्टेक है, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स वेर कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड। बाकी एक एक करके इंस्टॉलमेंट लाने का आते गया, मिलते गया। हाँ, तो दूसरा एंट्री होता है कि जब ये सब लोग को स्वीकार कर ले कि किसको कितने शेयर का मालिक बनाना है, तो दूसरा एंट्री करना पड़ेगा कि ये जो एप्लीकेशन का मिला हुआ पैसा वो कंपनी के कैपिटल में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर लोगों से पैसा लेने का मकसद है कि बिजनेस के कैपिटल में पैसा शामिल करो। आप क्लास 11 में जब नया अकाउंट सीखे थे तो मालिक जब पैसा लगाता था बिजनेस में तो आप लिखे थे एंट्री कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अगर 2 3 4 मालिक हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, ऐसे करते थे पार्टनरशिप में। बट कंपनी में तरीका ये है कि पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करो, फिर उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफ़र करो। तो दूसरा एंट्री करेंगे कैपिटल में ट्रांसफ़र करने के लिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शॉर्टकट में मैं ऐसे लिख दिया, अकाउंट समझिएगा,
अकाउंट डेबिट, वही 3 लाख। और इसका पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल में। दिस एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल, सो एंट्री फॉर दैट विल बी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ ऐसी लिखा मैं, मतलब अकाउंट, ये फिर क्रेडिट में जाकर हमको लिखना पड़ेगा 3 लाख। तो कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक ये मिल गया। इसका नरेशन होता है बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹3 each ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड ... ये इसका नरेशन होता है। फिर अभी एप्लीकेशन में आप क्या देख रहे हो कि यू आर रिसीविंग फर्स्ट एप्लीकेशन मनी एंड देन ट्रांसफरिंग इट टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, बट फ्रॉम द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज द अलॉटमेंट द एंट्री विल बी रिवर्स्ड। अब एंट्री उल्टा होगा, सीधा नहीं, मतलब पहले कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे फिर बाद में रिसीव करेंगे। तो देखिए थर्ड एंट्री जब अलॉटमेंट के लिए करेंगे तो ऐसे पहले ये हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, शॉर्टकट में मैं अलॉट लिखा लेकिन ये पूरा हो गया अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसी लिख दिया तो हो गया अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना से? तो देखिए अलॉटमेंट पे 1 लाख शेयर तो है ही, लेकिन 4 रुपये करके अलॉटमेंट पे दाम है, तो 1 लाख 4 जा कितना होता है? 4 लाख। 4 लाख, ओके। और ये पैसा पहले ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल इस अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये भी 4 लाख हो जाएगा। आई थिंक देयर इज़ नो एनी कन्फ्यूज़न, क्योंकि इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में दाम है 4 रुपये करके, तो और 1 लाख शेयर्स का 1 लाख 4 जा 4 लाख, तो ये एंट्री कर दिया, थर्ड एंट्री हुआ। फिर उसके बाद अलॉटमेंट का जो ड्यू डेट आएगा उस ड्यू डेट पे अलॉटमेंट का पैसा आएगा, तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि सब पैसा एक करके मिलते गया। तो अगर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तो जैसे देखिए एप्लीकेशन का रिसीव किए थे तो क्या एंट्री किए थे? वी हैव डन एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सो when we receive the application allotment money, entry will be like same, bank account debit, bank account debit कितना? 4 लाख, सॉरी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, जहाँ जहाँ मैं एसी लिख रहा मतलब अकाउंट हो गया। ये हो गया हमारा 4 लाख, ओके। तो अलॉटमेंट भी रिसीव कर लिया। इसी तरह से फिर अब कॉल का एंट्री करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट कॉल का इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी डेबिट, कितना रुपया? तो फर्स्ट कॉल पे दाम है इसका 2 रुपया करके, तो 1 लाख 2 जा 2 लाख रुपीज़, 1 लाख 2 जा 1 लाख दूनी 2 लाख रुपया, 2,00,0,0 टू, यहाँ भी पैसा पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये पैसा आपका चला जाएगा 1 लाख 2 जा 2 लाख। हो गया। अब फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट,
1 लाख 2 जा 2 लाख रिसीव कर लेंगे। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख। ओके, तो फर्स्ट कॉल का भी पैसा रिसीव कर लिए। फिर फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री करेंगे तो क्या होगा, जैसे हर एक का ड्यू किए, देखिए अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री किए तो क्या लिखे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री किए तो लिखे थे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री करेंगे तो उसी तरह से करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट 1 लाख 1 जा 1 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सर फाइनल का ये उसका ड्यू एंट्री है 1 लाख 1 जा 1 लाख, क्योंकि देखिए आप ऊपर क्वेश्चन में फाइनल कॉल पे दाम 1 रुपया करके ही था, तो 1 लाख 1 जा 1 लाख ही होगा। और फिर इसकी पैसा जब रिसीव कर जाएगा तो देखिए, अगर हम लोग एप्लीकेशन का मनी रिसीव किया तो क्या एंट्री लिखे थे, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट का रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और फाइनल कॉल का रिसीव करेंगे तो थोड़ी कुछ अलग होगा, उसी तरह से होगा, बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख 1 जा 1 लाख। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ओके, थोड़ा इसको राइट कर दे, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, देखिए AC अकाउंट कितना रुपया, वही 1 लाख रुपीज़, 1,00,000। तो इस तरह से ये जो सिंपल क्वेश्चन एक है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि भारत लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। भारत लिमिटेड नाम की कंपनी ने 1 लाख शेयर जो पब्लिक में इशू किया था ऑफ ₹10 ईच, जिसको तोड़ के इंस्टॉलमेंट में देना था, पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹4, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2 एंड ऑन फाइनल कॉल ₹1। तो एप्लीकेशन वे रिसीव्ड ऑन एग्जैक्टली 1 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन 1 लाख शेयर्स का मिला, तो नो ज़्यादा नो कम, नो ओवर सब्सक्रिप्शन, नो अंडर सब्सक्रिप्शन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स allotted all the applicants and thereafter all the remaining installments were called up and received as and when their due date arrived। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाई और सबको ठीक जो जितने शेयर के लिए अप्लाई किए थे उसके शेयर का मालिक बना के अलॉट कर दिया उनके नाम से, और फिर उनको बोला कि देखो जी, जब आने वाले इंस्टॉलमेंट यानी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का ड्यू डेट आया, आप लोग अपना पैसा देते जाओ। तो उन्होंने कॉल्ड अप किया, उन्हें पैसा मांगा एंड रिसीव्ड, और पैसा मिलते भी गया एज एंड व्हेन, जब देयर ड्यू डेट अराइव, जब उसका ड्यू डेट आया। अच्छा, तो ये एंट्री हम लोगों ने कर लिया। अब ये सिंपल क्वेश्चन मैं आपको समझाया, इसको आप समझिए, दिक्कत हो तो लिखिए। एक बार नरेशन फिर से बोल दूँ, एप्लीकेशन का पहला जो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹3 ईच। फिर ये जो दूसरा था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसका हो गया बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹3 इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड। फिर ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो ड्यू एंट्री है अलॉटमेंट का, उसका नरेशन हो गया बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹4 ईच एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड ... फिर ये जो अलॉटमेंट का मनी रिसीव किए, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹4 ईच, जिसका जन एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसी तरह से फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का एंट्री करते गए। समझिए आप इसको। थैंक यू।